biggest South Asian media group, Y Media. रिपोर्ट्स आ रही ने किसान अंदोलन के उत्ते वाई मीडिया की रिपोर्ट जी जारी है। किसान अंदोलन 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਔਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ 2020 ਔਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, 8 ਫਰਵਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਮ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ रही ने। जाम लगा हुआ पीछे से आता है, यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है सारा। समस्या है तो है भैया, ट्रैफिक जाम है तो आंदोलन होंगे तो जाम होंगे। परेशानी क्या है, सफर में हमारे यहाँ परेशानी तो हमको हो रही है यहाँ पे। और जिथे एक पासे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है। हर गांव का जो है 2-2 ट्राली 4-4 ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गांव का अलग अलग है। चूल्हा चौका उसका गैस सिलेंडर बालन सब कुछ जो है तवा परात अलग अलग लेकर के आए हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है ये उतना देरी आंदोलन चलेगा। जितनी देर सरकार चलाना चाहती है उन्नी देर आंदोलन चलेगा। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं। कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। 70-75% आबादी की मांग है, सब हम मिल के करेंगे। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। इतनी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। लोगों का समूह में आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना प्रतिबंधित है या किसी तरीके का वेपन लाठी ये सब लाना प्रतिबंधित है। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस की फोर्स, CAPF सभी का यहाँ पर अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमारे पास जो भी
संसाधन थे, और उसके साथ साथ हमने अदर एजेंसीज से रिक्वेस्ट करके इस बॉर्डर को प्रॉपर सील करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि इस बॉर्डर को किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता। सर, देखा जा रहा है यहाँ पे मट्टी के ट्रक खड़े कर रखे हैं, कहीं कांटेदार यहाँ पर तारे लगा रखी हैं, तो किस तरीके से तैयारी और कल रात से चालू कर रखी है और ये कब तक रहेगी? ये तैयारी जब तक ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन, अगर ये धारा 144 लागू रहेगी तब तक इस तरीके की तैयारियां पूरी रहेंगी। और इस दरम्यान ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। राकेश टिकैत की कह रहे हैं, जरा सुन लें। अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब की किसानी की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहाँ कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहाँ पे लेबर तैयार होती है बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि तो किसान लीडर राकेश टिकैत होना का तुसी बयान सुनिया, और बाकी हुण कल तो की रणनीति होएगी किसान लीडर वो भी सारा गलबात जिहड़ी है मीडिया नाल सांझी कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर हमारी ये डिमांड हमारे साथ बातचीत करने का क्या उत्तर बनता है? जब तक जो बातें कही हैं, देखिए ये कह दे, वो कह रहे हैं, मंत्री जी भी कह रहे हैं, कल मैंने सुनी उनकी बात, वो कह रहे हैं हमने इनकी बहुत सारी बातें मान ली गई हैं, एक भी मांग नहीं मानी। पहले आंदोलन के अंदर मानी जा चुकी थी जो बातें, और उन्हीं के ऊपर दोबारा उनको लागू करने का जब इन्होंने प्रयास किया तो उनको आज फिर उन्होंने ये वादा कर लिया कि ये हम आपसे मान लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मुद्दे नहीं जब तक खत्म होंगे तब तक आंदोलन नहीं रुक सकता। तो जब तक आंदोलन नहीं रुकेगा तो आंदोलन के दौरान ऐसी समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर इतना बड़ा लोकतंत्र की बात करती है हमारी सरकार, तो ये आज उनको दिखना चाहिए कि यहाँ पे जब किसान जिन्होंने पूरे देश को अनाज खिलाने का काम किया है, और जो हमारी सरकार अदर स्टेट कंट्रियों से मांगने के लिए जाया करती थी, कभी उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया किसानों ने, इतनी मेहनत की, और आज वो किसान देश के राजधानी में जाना चाह रहे थे और उनके ऊपर ये इस तरीके का हमला करना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके का हमला किया, हमारे लगभग 7 के करीब नौजवान घायल कर दिए गए आज के घटनाक्रम में, और उन्होंने पूरा जबर का मुकाबला सब्र से किया है। वो समझदार बन चुके हैं कि हमने आंदोलन जीतना है। सरकार इस आंदोलन को हराने के लिए उनको अग्रेसिव करने का प्रयास कर रही है, और उन्होंने बड़ा हिम्मत से इसका मुकाबला किया। बाकी बात हमारे भाई साहब संदेश सब करेंगे। देखिए, आज पूरे भारतीय इतिहास में, भारत की राजनीति में आज काला दिवस है। आज देश के किसान मजदूर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने हमला किया है, ये शर्म वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूँ, जो दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होता। पंजाबी में हम बोलते भी अपनी मड़ी आप पुट लेंदे थे, तो वो अपनी मौत खुद खरीद रहे हैं किसानों पे हमला करके, जो हम देख रहे हैं। हम आज भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस देश के किसान और खेत मजदूर है। हमारा दिल्ली के जाना आने का सवाल नहीं है, हमारा आपसे लड़ना आने का सवाल नहीं है। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, C2 प्लस 50%, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो आपने मानी हुई है। और देखिए, ये आपके माध्यम से जानी चाहिए। वो बोल रहे कमेटी बना लिए, हमने बोला CACP में जो आप अनाउंसमेंट करते हर 6 महीने के बाद,
अपनी एमएसपी वो पूरी आप उसके चर्चा करने के बाद करते हैं, तो उस 23 फसलों के बाद जहां आप एमएसपी का अनाउंस करते हैं उनके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बना दीजिए। आग निकले तो वो कुछ करना नहीं चाहते। कर्ज के ऊपर हमने बात की तो बोले कमेटी डिसाइड करेगी कितना कर्ज है कितना नहीं। बोले देखो बैंकों का कर्जा है, ये 10 दिन में सारा डेटा सामने आ जाता, सबको मालूम है कितना देश के किसान मजदूर के ऊपर कर्जा है। तो मान के भी जब हमने ये सवाल किया कि आप कहते हैं देश में कानून है, कानून व्यवस्था रहेगी, ठीक है, और कुछ केसों के ऊपर वो जीनियस क्राइम बोल रहे थे हमारे केसों के ऊपर। हमने बोला क्या लखीमपुर खीरी को आप जीनियस क्राइम नहीं मानते? बोले मानते हैं। तो बोला आपका जो मंत्री है अजय मिश्रा टैनी, उसके ऊपर 120B का पर्चा है साजिश करने का, तो आपके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ, उसको निकालिए, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। जैसे बिजली संशोधन बिल के ऊपर भी बिल्कुल तथ्यों से हटकर मंत्री महोदय ने बात की। अब बातें तो हमने सुनी इस माहौल में भी जब हरियाणा पूरी तरह कश्मीर वैली में बदला गया। Biggest South Asian media group, Y Media.